અને ગ્લોબલ ગ્રાન્ટ અંગે વાત કરવાના છે પીડીજી લલિત શર્માજી આપણી જોડે છે. આઈ રિક્વેસ્ટ ડોક્ટર શશાંક રાઠોડ, પીડીજી ડોક્ટર શશાંક રાઠોડ ટુ give opening remarks to this program. શશાંક ભાઈ તમને અનમ્યુટ કરવા પડશે તમને. You are mute. So good evening to everyone. Can you hear? અવાજ આવે છે ખરો? અવાજ આવે છે પણ ઇકો પડે છે, એકદમ ઇકો આવે છે. શશાંકભાઈ તમારે ત્યાં બે ચાલુ હશે કનેક્શન. તો મોબાઈલ થી કરું હવે નાઉ? હા હવે બરાબર છે. Okay. See, welcome to this TRF second educational program. I would just say that we talk about Rotary International. મને ઘણી વાર એવું થાય કે આ ઇન્ટરનેશનલ જે શબ્દ છે તમારે એપેન્ડ કોઈની બી જોડે કરવો હોય તો it can only be done if that organization is involved stretching their hands beyond the boundaries and frontiers, right? હવે રોટરીના બધા પ્રોગ્રામ્સ જુઓ તો you will see that it is a programs of Rotary Foundation which truly qualifies Rotary to be called Rotary International, right? You are getting the voice now? Yes. Now, Video we should understand that there are two major aspects of Rotary Foundation. On the one side is a glorious, fabulous programs of Rotary Foundation, and on other side is a fund development, necessary fund to be raised to pay for this program. Our bank balance you deposit in the bank and then you can withdraw it. So Rotary Foundation gives us a window to see the real world. Window through Juo Rotary Foundation, you will see the half of the world's population is surrounded by poverty. You will see millions of children have no educational or school facilities. Millions of children are sick and crippled. These people are struck with the diseases. Many of you, and now we have seen the Rotary Foundation in action, all of us. જે જગ્યા ઉપર malnutrition prevents the growth of a children, the Rotary provides them supplements. જે જગ્યા ઉપર water has been drawn from generation from polluted stream, Rotary Foundation funded wells are created. Where schools are not there for children, Rotary builds schools. Educational facilities, where diseases are rampant, the Rotary provides vaccines and drugs. Where poverty are there, Rotary builds low-cost shelter. When young students want to study abroad, the Rotary gives ambassadorial scholarship, peace scholarship, group study action, now we call VTT, vocational training team. So there are the kaleidoscope of the programs which Rotary Foundation is addressing. And we Rotarians can create our tailor-made programs, and for that we can apply for variety of global grants to Rotary Foundation. And Foundation and our matching partner would give us a fund for this. So today, just last talk by Lalit was really fabulous on fund development. And today we are going to enjoy on global grants. Let me sum up by telling that if there is no Rotary Foundation, there will not be no Rotary International. Thank you and enjoy today's session. Thank you. Thank you, Shashank bhai. Friends, we all know Lalit bhai is past district governor. Lalit bhai is a DRFC and is very expert in this foundation. The other day he gave about first part of foundation. Today, I request Lalit bhai to begin his talk. Lalit bhai, you are already made co-host. You can share your screen.
ललित भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप म्यूट हो, आप म्यूट हो म्यूट हो ललित। ललित भाई, आप म्यूट हो। Hello. यस, हाँ अब आ रही है। Thank you, Mehul bhai, for giving me this wonderful opportunity, and thank you, Shashank bhai, for making my task very easy by your opening remarks. पिछली बार दोस्तों हमने ये देखा था कि रोटरी फाउंडेशन में पैसा आता है तो किन किन तरीके से पैसा आता है। आज हम ये देखेंगे कि उस पैसे का यूटिलाइज, जो फंड्स आते हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है। ये वैसे बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं इसको बहुत यूजर्स फ्रेंडली बना के जो कठिन है उसको एकदम सरल शब्दों में आपको बताऊं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी मौके पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई भी कोई ऑटोमेटिक फिल्म देख रहे हैं या क्या हो रहा है। मैंने कोशिश की है कि मैं इसको जितना इंफॉर्मेटिव बनाना चाहूँ उतना बनाऊं और आज का सेशन आप सबके लिए यूजफुल हो। डिप्लॉयमेंट फंड में हमने देखा था कि जो फंड के जितने तरीके हैं, एनुअल फंड, परमानेंट फंड, पोलियो फंड और रेस्ट्रिक्टेड फंड। एनुअल फंड में हमें था कि हम जितना भी कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका 50% हमारे को डीडीएफ में मिलता है और बाकी का जो 50% है वो रोटरी फाउंडेशन रोटरी के ग्रांट्स में दे देती है। परमानेंट फंड और ये एंडोमेंट फंड जो है, हमें मालूम है कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमेशा के लिए रोटरी के पास जमा रहता है और उसको जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी जो अर्निंग होती है उस अर्निंग में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के रूप में निकाल देते हैं और बाकी जो होता है उसको ग्रांट और दूसरे प्रोग्राम को पोषित करने में लगाते हैं। पोलियो फंड में जो इकट्ठा करते हैं उसका पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन हम पोलियो प्रोग्राम और पोलियो से संबंधित जो भी आइटम है उसको हम प्रोक्योर करने में या उसके पीआर वगैरह में खर्च करते हैं। और रेस्ट्रिक्टेड फंड जैसे ग्लोबल ग्रांट या किसी भी Only 1 minute Lalit bhai. I request everyone to mute themselves. કોઈ નો અવાજ આવે છે, બીજાને disturbance થાય છે. Please check your position and mute yourself. और चौथा और आखिरी जो है रेस्ट्रिक्टेड फंड, जो हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए देते हैं वो उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूटिलाइज होता है। जैसे ग्लोबल ग्रांट में क्लब का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो वो ग्लोबल उस स्पेसिफिक ग्लोबल ग्रांट में यूटिलाइज होता है। फाउंडेशन में जो बेसिक है वो ग्रांट ही है और ग्रांट दो तरह की है, एक डिस्ट्रिक्ट ग्रांट और दूसरी ग्लोबल ग्रांट। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में दोनों को समझाता हूँ। ये जो फंडिंग की जाती है ये इस तरह से 2017-18 का जो एनुअल फंड है वो रोटरी फाउंडेशन जमा करता है, 18-19 और 19-20 में उसको इन्वेस्टमेंट करता है और 20-21 में इस बार उन्होंने वो हमारे को 50% जमा करवाएंगे, हमारे को डीडीएफ में मिलेगा और अगले साल से 1 जुलाई से जो है ये 50% की अमाउंट घटा के 47.5 कर दी गई। अब आप कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट ग्रांट और ग्लोबल ग्रांट में फर्क क्या है? डिस्ट्रिक्ट ग्रांट बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए की जाती है और ग्लोबल ग्रांट्स में कम से कम $30,000 का बजट आपको होना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट ग्रांट की एप्लीकेशन है आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, जबकि ग्लोबल ग्रांट की एप्लीकेशन आपको रोटरी फाउंडेशन में ऑनलाइन करनी पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट ग्रांट जो है ये हमारे लोकल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए हो सकती है, ग्लोबल ग्रांट ये सिर्फ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट ग्रांट में किसी तरीके का कोई पार्टनर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ग्लोबल ग्रांट में पार्टनर रिक्वायरमेंट है। डिस्ट्रिक्ट ग्रांट सिर्फ $3,000 पर क्लब के हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन कैश नहीं दे सकते। लेकिन ग्लोबल ग्रांट में डीडीएफ और क्लब कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट ग्रांट में कोई टीआरएफ का मैच नहीं होता, ग्लोबल ग्रांट में टीआरएफ अपने हिसाब से मैचिंग करती है।
डिस्ट्रिक्ट ग्रांट में पॉलरिस की क्रेडिट नहीं मिलती और इसमें हम जो कंट्रीब्यूशन देते हैं उसमें मिलती है। डिस्ट्रिक्ट ग्रांट लेने के लिए ये जरूरी है कि क्लब को क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई कैसे होते हैं ये मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा। और ग्लोबल ग्रांट के लिए भी ये जरूरी है कि क्लब क्वालिफाई होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ग्रांट छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए होती है और ग्लोबल ग्रांट बिग और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए होती है, जो कि हमारा एरिया ऑफ फोकस में आता है, उसी में। डिस्ट्रिक्ट ग्रांट मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट ग्रांट क्या है। ये या तो लोकल या इंटरनेशनल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हो सकती है। और इसके जो फंड हैं ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने अपने हिसाब से आप क्लब सेलेक्ट करके उसमें फंड को स्पेंड कर सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग या मॉडिफाइड वीटीटी, कल्चरल एक्सचेंज, इनमें आप ले सकते हैं। और ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए ली जाती है। और हमारी जो लोकल कम्युनिटी है उसकी नीड के लिए या कोई बाहर की कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी नीड के लिए 3,000 रुपए पर क्लब से ज्यादा नहीं हो सकती। हर डिस्ट्रिक्ट को अपने अपने हिसाब से ये एक्टिविटीज और ये ग्रांट चूज करने का पूरा अधिकार है। डिस्ट्रिक्ट 3054 में हमारे यहाँ जो सीनेरियो है कि हमारे यहाँ बहुत फ्रीडम है, बहुत कम ग्रांट हुई है, लेकिन जो हुई है वो काफी अच्छी हुई है। जगदीश भाई ने अपने टाइम पे एजुकेशनल मटेरियल दिए थे, ग्रीन बोर्ड, क्लासरूम में फैन दिए थे, फोल्डेबल लाइब्रेरी दी थी और बाइसिकल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए दिए थे, हैंड वॉश सिस्टम, प्लेग्राउंड मटेरियल। रोटरी क्लब डीसा के लिए उन्होंने मॉर्ग बॉक्स दिया था, आरओ सिस्टम दिए थे स्कूल्स में। बीटीटी की मेडिकल टीम गई थी श्रीलंका और अफ्रीकन कंट्रीज में। रायला, रोट्रैक्ट, इंटरैक्ट और वोकेशनल ट्रेनिंग को सपोर्ट करने के लिए ये ग्रांट की जाती है। और ग्रांट मैनेजमेंट सेमिनार को भी पोषित करने के लिए ये इस ग्रांट के पैसे का उपयोग किया जा सकता है। सवाल ये है कि रोटरी फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट को कैसे फंड करता है। इसके लिए ये है कि एंटाइटलमेंट है कि जितना हमारा डीडीएफ है उसका 50% ही हम इस ग्रांट में ले सकते हैं। जैसे इस बार हमारा जो डीडीएफ है वो $32,500 है, तो हम मैक्सिमम ये ग्रांट है 50% यानी $16,250 की ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब $16,250 में कितने डिस्ट्रिक्ट को कितनी कितनी ग्रांट देनी है ये डिपेंड करता है हमारे गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पे और ये इस फ्लो पे कि हमारे पास हम क्या ये 50% छोटे क्लब के लिए निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। ये जो ग्रांट के पैसे हैं ये टीआरएफ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट को देता है और उसके बाद उनको डिस्ट्रिक्ट जो है उन क्लब्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रिक्ट एक सिंगल ग्रांट रोटरी फाउंडेशन के पास अप्लाई कर सकते हैं ये एक या ज्यादा प्रोजेक्ट के लिए, और उसको देखते हुए रोटरी फाउंडेशन जिस तरीके से भी उनको सूट करता है वैसे उस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करते हुए फंड डिस्ट्रिक्ट में डिसबर्स करेंगे। डिस्ट्रिक्ट फंड तब तक रिलीज नहीं किए जा सकते जबकि पुरानी वाली कोई डिस्ट्रिक्ट ग्रांट से वो क्लोज नहीं है। डिस्ट्रिक्ट ग्रांट जो है ये रोटरी के करंट जो डॉलर और रुपए की रेट है जो जिस वक्त पेमेंट होता है उसी के हिसाब से की जाती है। और जब हम ये साल खत्म होता है उसके बाद इसके फंड को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। और 31 मई तक अगर इनकी वो इम्प्लीमेंटेशन की और पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो ग्रांट आप नहीं लगा सकते, ग्रांट कैंसिल कर सकते हैं। मेरा केस मैं आपको बताता हूं, जब मैं गवर्नर था तो हमारे डिस्ट्रिक्ट को अप्रैल में रिपोर्टिंग के लिए कि हमारे यहाँ जो जितनी भी ग्रांट्स थी ग्लोबल ग्रांट और डिस्ट्रिक्ट ग्रांट उनकी रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं हुई थी और कुछ जगह तो हुई ही नहीं थी। इसीलिए हम चाहते थे तो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट ग्रांट उस वक्त नहीं ले पाए क्योंकि हमने सोचा था कि हम इसके पैसे का यूटिलाइजेशन मार्च के बाद करेंगे, लेकिन चूंकि अप्रैल में बैन लग गया इसलिए हम लोग इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। सवाल है कि क्लब को ये ग्रांट कैसे मिलेगी। इसके लिए सिंपल है कि क्लब को एक सिंपल पेपर पे एक एप्लीकेशन बना के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को देनी होती है। अब चूंकि टीआरएफ से कोई मैचिंग नहीं है और जितना फंड हमारे पास अवेलेबल है तो आप एक सिंपल एप्लीकेशन बनाइए और उसमें लिखिए कि हमें ये कौन से प्रोजेक्ट के लिए ये डिस्ट्रिक्ट ग्रांट करनी है, क्या इसका पर्पज है, कितने इसके बेनिफिशियरी होंगे, कितने समय में हम इसको कर पाएंगे और क्या क्या इसके फायदे होंगे, क्या इसकी कॉस्ट आएगी।
और उसके बाद फिर डीजी डिसाइड करेंगे अपनी टीम के साथ मिलके कि क्या ये ग्रांट सैंक्शन करने लायक है। अगर उसमें लगता है कि इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है तो निश्चित रूप से वो कंसिडर की जाएगी। लेकिन उसके बाद क्लब को डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और उनके डीजी ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट करके पूछना पड़ेगा कि हमारी ग्रांट का स्टेटस क्या है। डिस्ट्रिक्ट ग्रांट के फंड कहाँ यूटिलाइज नहीं किए जा सकते, ये मैं आपको बताता हूँ कि किसी एक ग्रुप के लिए डिस्क्रिमिनेट करने के लिए या कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस व्यू पॉइंट करने के लिए, कोई रिलीजियस फंक्शन करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम आसाराम बापू का कोई फंक्शन करके उनके प्रमोशन करने का, दैट कैन नॉट बी डन। या कोई ऐसी एक्टिविटी जो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट को बढ़ावा देती हो, उसके ऊपर भी नहीं किए जा सकते। और परचेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन पे भी इसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। किसी भी एक संस्था को लगातार अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं तो भी हम नहीं कर सकते। और कोई भी फाउंडेशन या परमानेंट ट्रस्ट को स्थापित करने के लिए भी ये ग्रांट नहीं लगाई जा सकती। लैंड या बिल्डिंग परचेज ये भी इस ग्रांट से नहीं हो सकते। फंड रेजिंग एक्टिविटी इस ग्रांट से नहीं हो सकते। या रोटरी की दूसरी कोई इवेंट्स जिसका खर्चा हमने ऑलरेडी कर दिया है वो भी इस ग्रांट के थ्रू पोषित नहीं किया जा सकता। इस ग्रांट में हम और हमारा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पीछे है? सबसे बड़ी बात तो ये कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये ग्रांट होती भी है क्या। दूसरा, डीडीएफ हमारे पास हमेशा शॉर्टेज में रहता है, इसलिए गवर्नर के पास इतना डिस्क्रिप्शन ही नहीं रहता है कि वो डिस्ट्रिक्ट ग्रांट के लिए कुछ पैसा डीडीएफ में से निकाल पाए। और लास्ट के 12 में से 4 बार ऐसा हुआ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्लब ने रिपोर्टिंग ही नहीं की पैसा लेने के बाद। कई क्लब तो ऐसे थे जिन्होंने उसका एक्नॉलेजमेंट, पावती भी नहीं भेजी कि क्या हो, लेट अलोन द यूटिलाइजेशन तो बात की बात है। पैसा लेने के बाद उन्होंने ये भी करने की कोशिश नहीं की कि हमने इस पैसे का क्या किया, यूटिलाइज किया भी है या नहीं किया गया है, और किसी तरह की रिपोर्टिंग नहीं की गई। और जब पूछा गया कि ये क्यों आपने नहीं किया, तो बड़ा पिक्यूलियर जवाब दिया कि सर ये भी करना पड़ता है क्या हमने पैसा लिया तो इसका आपको जवाब देना पड़ेगा? हमने तो दे दिया सबको। भाई आपने दिया है तो सबको आपको यूटिलाइजेशन भी बताना पड़ेगा कि क्या किया है, और वो भी विद ऑडिटेड रिपोर्ट के साथ आपको पूरा बताना पड़ेगा। विद कौन कौन बेनिफिशियरी थे, बेनिफिशियरी का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आपको उसके फोटोग्राफ देने पड़ेंगे, और आपको बताना पड़ेगा कि कितने बेनिफिशियरी थे और हमने क्या क्या काम किया है। एक पिक्यूलियर चीज बताता हूँ, रत्नेश कश्यप जी जब हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, उन्होंने एक ग्लोबल ग्रांट की और उसमें 13 क्लब को उन्होंने पैसे दिए। और वो क्लब फॉर्चुनेटली पैसा लेके भूल गए, सबने अपने अपने हिसाब से खर्च कर लिया। और एक बार ये हुआ कि यार ये हमारे डिस्ट्रिक्ट को सस्पेंड कर दिया गया इसलिए कि ये नहीं है। 13 के 13 क्लब में जब पूछा तो हमें बड़े विचित्र जवाब मिले। किसी ने बोला कि हमारा प्रेसिडेंट चला गया, अब हम क्या करें। किसी ने बोला साहब वो प्रेसिडेंट के पास तो है पर वो रिकॉर्ड किसके पास है ये हम नहीं कह सकते। किसी ने बोला हमें तो पता ही नहीं कि पैसे आए भी हैं या नहीं आए। नाउ these were very funny thing और very unfortunate thing कि हमारे रोटरी में भी ऐसी चीजें हमें देखने को पड़ती है कि ये क्या हुआ। कई क्लब ऐसे थे जिन्होंने बोला साहब हमने तो 2-3 बार इसकी रिपोर्टिंग कर दी है, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल से सबसे ऊपर से कह के, सबसे कोशिश करके एक हमने हमारी पर्सनल अंडरटेकिंग दी कि ये सब पैसा जो है क्लब्स ने यूटिलाइज कर लिया गया है। जिनकी रिपोर्टिंग थी उनकी तो कर दी। 3 या 4 क्लब ऐसे थे जिनकी रिपोर्टिंग हम नहीं कर पाए थे, और उनसे कहा कि अगर ये फ्यूचर में किसी तरीके का कोई ये इनकम टैक्स में या कहीं पे केस खुलता है और हम इसकी जवाब नहीं दे पाते हैं, तो हम लोग व्यक्तिगत रूप से जितने पैसे उनको दिए गए हैं क्लब को, उतने पैसे व्यक्तिगत रूप से रोटरी फाउंडेशन को चुकाएंगे। और ऐसी अंडरटेकिंग करने के बाद पहली और आखिरी बात शायद रोटरी फाउंडेशन ने एक स्पेशल केस लेते हुए उस ग्रांट को क्लोज किया। और तब से हमने ये डिसाइड किया कि जहां तक हो वहां तक ऐसे ही क्लब को दो जो कि जिनको मालूम है कि अगर प्रेसिडेंट चला जाता है तो उसके बाद रिकॉर्ड किसके पास रहते हैं। आप ये बहाना नहीं बना सकते कि मेरे पास सर पैसे तो हमने ले लिए लेकिन अभी प्रेसिडेंट तो छोड़ के चला गया, या अब उसकी हमारे प्रेसिडेंट से बनती नहीं है इसलिए वो फोन भी नहीं उठाता, आता भी नहीं है, तो क्या करें।
लेकिन जब पैसा लिया गया था तब ही वॉज पार्ट ऑफ योर क्लब, ही वॉज हेडिंग योर क्लब। आप ये नहीं कह सकते कि अब चूंकि नहीं है तो हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्लब कृपया ध्यान दें इस चीज के लिए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज थी और मुझे लगा कि मैं इसको डिटेल में आपको बताऊं, इसीलिए मैंने आपको ये चीज बताई। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दूसरी चीज, ग्लोबल ग्रांट के लिए। ग्लोबल ग्रांट सबसे पॉपुलर और इफेक्टिव प्रोग्राम है हमारी रोटरी में, जिसने आज तक लाखों लोगों की जिंदगियां डाउन साइड से अप साइड की है और उनकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। जब कुछ सालों पहले तक ये मैचिंग ग्रांट कहलाती थी और उसके बाद 5-6 साल पहले इसके स्कोप को वाइडन किया गया थोड़ी बड़ा किया गया, इसको मीनिंगफुल बनाया गया और ये डिसाइड किया कि कम से कम $30,000 तो इसमें स्कोप होना ही चाहिए। जब तक 30,000 का ये ग्रांट नहीं है तब तक हम कोई भी ग्लोबल ग्रांट नहीं करेंगे। और बड़ा करने का मतलब ये था कि जब तक हम बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तब तक समाज में हम लोग ये बता ही नहीं पाएंगे कि हम कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। छोटे प्रोजेक्ट को समाज में कोई भी नहीं देखता। फंडिंग में मैंने आपको बताया कि जो वर्ल्ड फंड से कम हमें 10,000 की मैचिंग लेनी जरूरी है, हमसे या इंटरनेशनल पार्टनर से। इंटरनेशनल पार्टनर में कम से कम 15% कंट्रीब्यूशन चाहिए। पहले 30% हुआ करता था, लेकिन अभी इसको 15% कर दिया गया है। और इसकी ड्यूरेशन है, ये छोटे छोटे नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल गोल्स के लिए ही इसको ग्लोबल ग्रांट को देते हैं। के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपका क्लब क्वालिफाई हो ग्रांट लेने के लिए। और क्लब क्वालिफाई तभी होता है कि जब आपके क्लब में से प्रेसिडेंट इलेक्ट और उसके साथ कोई भी एक व्यक्ति ग्रांट मैनेजमेंट सेमिनार अटेंड करे 30 जून के पहले, साल शुरू होने के पहले, और एक मेमोरेंडम साइन करके डिस्ट्रिक्ट को दे कि हम रोटरी फाउंडेशन द्वारा किए गए सब कार्य का सपोर्ट करेंगे और अगर ग्रांट लेते हैं तो उनमें हर उस चीज का पालन करेंगे जिसके लिए हम बाध्य हैं। और ये मेमोरेंडम साइन करने के बाद जब उसका ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साइट पर चढ़ाते हैं तो आपका क्लब ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाता है। ग्लोबल ग्रांट का लाइफ स्पान मैं आपको बताऊंगा। प्लानिंग करते हैं सबसे पहले, उसके बाद अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन और मॉनिटरिंग करते हैं, फिर उसकी रिपोर्टिंग करते हैं और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टेवर्डशिप। अगर हम हमारे बिजनेस में देखते हैं तो भी तकरीबन यही है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, आपकी फैक्ट्री हो या आपका बिजनेस हो, तो उसके सेटअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लानिंग। उसके बाद प्लानिंग का एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन और पीरियडिकल इवेल्युएशन की आपने जो गोल बनाए थे आप उसी हिसाब से ग्रांट आपकी चल रही है या नहीं चल रही है, उसको मॉनिटरिंग ठीक से कीजिए। उसके बाद वो कंप्लीट हो जाती है तो उसकी रिपोर्टिंग कीजिए। और स्टेवर्डशिप, जिसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। ग्लोबल ग्रांट की जो साइकिल है, सबसे पहले रिव्यू करते हैं हम ग्लोबल ग्रांट को हमारे स्टेज पे और उसकी एप्लीकेशन बनाते हैं। एप्लीकेशन बनाने के बाद उसको रोटरी फाउंडेशन को सबमिट करते हैं। अब रोटरी फाउंडेशन जो है ग्रांट ऑफिसर हमारी एप्लीकेशन को रिव्यू करता है और डिटरमाइन करता है कि ये ग्रांट एलिजिबल है या नहीं। अगर उसमें से कोई चीज मिसिंग है तो मिसिंग इंफॉर्मेशन हमसे मांगते हैं, हम उसको सबमिट कर देते हैं और उसके बाद वो ग्रांट ऑफिसर जो फाउंडेशन है उसको लगता है कि इस प्रोजेक्ट को हम लोग कर सकते हैं तो वो ग्रांट को अप्रूव करता है और या डिसअप्रूव करता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा अप्रूव ही होती है, काफी केस में ऐसा भी होता है कि ग्रांट एप्लीकेशन अप्रूव भी नहीं हो पाती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो ग्रांट को परिकल्पना करते हुए ये सोचने का है कि जो ये ग्रांट है ये हमारे इन 6 एरिया ऑफ फोकस में होनी चाहिए। रोटरी फाउंडेशन के 6 एरिया ऑफ फोकस है: पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन रिजोल्यूशन, डिजीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, वाटर सैनिटेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, बेसिक एजुकेशन एंड लिटरेसी, इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। और एक साथ से एक दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फोकस होने वाला है, वो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। दुनिया के कोई भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, सोशल प्रोजेक्ट्स हैं, वो तकरीबन 90% इन 7 केसेस में आ जाते हैं। रेयरली कोई ऐसा होगा जो इन एरिया में नहीं आ सकते हैं। इसलिए कोई भी सोशल प्रोजेक्ट अगर हम करते हैं तो हमें ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि इन 6 में से क्या है और आने वाले टाइम में ये 7वां भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
सबसे पहले हमें एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। रोटरी कलोल और रोटरी गांधीधाम का एक विचित्र केस आया, वो इनके यहाँ जो शमशान है उसको ये वुड फायर की जगह गैस फायर्ड करना चाह रहे थे। और जब इनकी एप्लीकेशन बनाने के लिए हम बैठे तो हमें लगा कि न तो ये पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन और रिजोल्यूशन में आती है, न ये डिजीज प्रिवेंशन में आती है, वाटर एंड सैनिटेशन में नहीं आती है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में भी नहीं आता है, बेसिक एजुकेशन में भी नहीं आता है, इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी नहीं आता। तो जब किसी में भी नहीं आया तो हमने सोचा कि इसका किया क्या जाए, तो हमने रोटरी फाउंडेशन को लेटर लिखा कि ये ऐसे ऐसे है, अब इसमें किसी भी एरिया में नहीं हो रहा है तो इसका क्या किया जाए। तो उन्होंने रिग्रेटफुली कहा कि आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन चूंकि ये एरिया ऑफ फोकस जो हमारे 6 एरिया ऑफ फोकस इस वक्त उसमें नहीं आता है, इसलिए आप ये काम नहीं कर पाएंगे। सोचिए हमारे लिए कितना भावनात्मक है कि शमशान गृह जो वुड फायर्ड है उसको अगर हम गैस फायर्ड करना चाहते हैं, वो चूंकि रोटरी के इन एरिया ऑफ फोकस में नहीं आता था इसलिए उस प्रोजेक्ट को डिक्लाइन हुआ। और हम अगर ये एप्लीकेशन लगा के पूरी मेहनत कर लेते तो ये शायद रोटरी के ग्रांट में, ग्लोबल ग्रांट में नहीं हो पाता। इसीलिए सबसे पहले हमने जो सोचा यही किया कि हम ये एक्सप्लेनेशन ले लें। आप भी अगर सोच रहे हैं कि कोई ग्रांट हमें करनी है तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए कि ग्रांट सैंक्शन होने के लिए एलिजिबल तो है या नहीं। उसके बाद उसका फंडिंग पैटर्न चेक कीजिए, बजट बनाइए, देखिए कि मेरे इस बजट में क्लब कितना लगाएगा, डिस्ट्रिक्ट कितना देगा, इंटरनेशनल पार्टनर से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, इंटरनेशनल पार्टनर्स का हमारा डीडीएफ कितना लेंगे। और जब ये पूरा हो जाता है उसके बाद अपने इंटरनेशनल पार्टनर से टाई अप कीजिए। इंटरनेशनल पार्टनर को आप टाई अप करने के लिए या इंटरनेशनल पार्टनर ढूंढने के लिए आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि आजकल चूंकि ऑनलाइन मीडिया काफ़ी रिलेवेंट है, इसलिए ये सब लिंक्डइन मैंने आपको बताए हैं कि आप कीजिए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट वो यही है कि सब चीज़ें पर्सनल कॉन्टेक्ट से ज़्यादा होती हैं। अगर आपके, हम फॉर्चुनेटली गुजरात में हम जो भी रहते हैं उनके सबके किसी न किसी के कोई ना कोई रिश्तेदार फॉरेन में रहते हैं और उनसे तकरीबन हर बार लीड मिल जाती है और प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इसकी जो ग्रांट की फंडिंग बेसिस है वो तकरीबन, अगर हम होस्ट क्लब का कंट्रीब्यूशन होता है या होस्ट क्लब का डीडीएफ होता है या कोई थर्ड पार्टी हमें डोनेशन देती है। इंटरनेशनल की वजह से देखते हैं तो इंटरनेशनल का क्लब का कंट्रीब्यूशन होता है, इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट का डीडीएफ हमें मिलता है। इसके अलावा कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी हम डीडीएफ ले सकते हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट का मैं बताता हूँ, जैसे भी रोटरी क्लब कांकरिया अपना स्किन बैंक का प्रोजेक्ट लगा रही है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ सिविल हॉस्पिटल। चूंकि डिस्ट्रिक्ट के पास फंड नहीं थे इसलिए उन्होंने बॉम्बे से डीडीएफ लिया और ताइवान से डीडीएफ लिया, और इस तरीके से डीडीएफ लेने के बाद, और बहुत हैंडसम डीडीएफ लिया, और लेने के बाद वो लोग अब इसकी एप्लीकेशन हो चुकी है और ये उसके रिव्यू के फाइनल स्टेज में। फंडिंग, जितनी हम फंडिंग करते हैं उसका कुछ टीआरएफ भी मैच करता है, और इस ग्रांट का सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था, और ये पॉपुलर भी इसी वजह से थी और है, कि जितना हम पैसा लगाते हैं उसका कुछ % हमारा रोटरी फाउंडेशन भी देता है। होस्ट क्लब का कंट्रीब्यूशन जितने भी हम रुपए लगाते हैं, जैसे हम $10,000 लगाते हैं तो पहले हमारे को 50% यानी $5,000 मिल जाया करते थे, लेकिन इस वर्ष से रोटरी फाउंडेशन ने ये बंद कर दिया। होस्ट डिस्ट्रिक्ट का जो डीडीएफ है इस वर्ष तक 1,000% 100% था, यानी अगर हम $10,000 का डीडीएफ देते हैं तो टीआरएफ भी उसमें $10,000 ही मैच करता है, लेकिन एक साथ से इसको कम करके 80% कर दिया है। ये एक दोहरी मार है। क्लब कंट्रीब्यूशन 50% से नील किया और होस्ट का जो डीडीएफ है वो भी 100% से 80% कर दिया। कई लोगों को लगता है कि यार अभी पहले जैसी आकर्षण नहीं रहेगा इसका। पहले तो हम 25% लगा के और 100% ले लेते थे, लेकिन अब शायद क्लब को और डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा लगानी पड़ेगी, और शायद रोटरी फाउंडेशन भी यही चाहता है कि ये खुद कुछ कम दे और इसका जो पार्टिसिपेशन है वो डिस्ट्रिक्ट
और क्लब लेवल पे ज्यादा है, और लोग बाग वो ये फंडिंग चाहते हैं कि इसकी फंडिंग क्लब जितना ज्यादा करे उतना ज्यादा अच्छा। इंटरनेशनल क्लब में भी जो है उसका होस्ट क्लब के हिसाब से नील कोई मैचिंग नहीं होगा। पहले 50% होता था, डीडीएफ का सेम है 100%, और अगले वर्ष से इसको 80% हो जाएगा, और अगले वर्ष से भी नहीं, मेरे पास तो अभी नोटिफिकेशन है कि जब तक ये मैचिंग कंप्लीट होती है तभी तक है, लेकिन अगर रोटरी फाउंडेशन के पास फंड नहीं होंगे इस वर्ष भी तो भी ये 80% में ही कर देंगे वो। मुझे आज भी याद है, आज हम जयपुर सिटीजन का एक ब्लड बैंक की एप्लीकेशन लगा रहे थे, तो कल जब हमने इसका फंडिंग पैटर्न चालू किया तो $22,000 डीडीएफ का 80% ऑटोमेटिकली उसमें होके आ गया। इसका मतलब अभी 2-4 दिन में जो भी एप्लीकेशन सबमिट होने वाली है उसमें यही होने वाला है कि आपका 100% से 80% ही हो जाएगा। फॉर्चुनेटली आज उन्होंने वापस सुधार लिया और हम लोग 100% कर पाए जयपुर सिटीजन में, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम इस साल शायद 7-8 दिन में आने ही वाली है। मैं आपको स्पेशल ये स्लाइड है, आप इसको ठीक से देखिएगा कि पहले हम अगर $1,000 हमारे होस्ट क्लब लगाता था तो $500 टीआरएफ देता था। अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट डीडीएफ 5,000 का देता था तो $5,000 का डीडीएफ टीआरएफ मैच करता था। इंटरनेशनल क्लब अगर 3,000 लगाता था तो $1,500 मिल जाते थे, और इंटरनेशनल का डीडीएफ 7,000 मिलता था तो हमें 7,000 मिल जाते थे। टिपिकली $1,000 क्लब लगा के और होस्ट डिस्ट्रिक्ट $5,000 का डीडीएफ देके हम $31,000 की ग्रांट कर लेते थे। इसका मतलब 1/5 पैसा हमारा डिस्ट्रिक्ट लगा के $31,000 की ग्रांट कर लेता था। लेकिन अब ये चीज नहीं हो पाएगी। अब आप ठीक से देखिए, अब जो एक मैं आपको दूसरा बताता हूँ। कोटा में जो है हमने एक नियोनोटल आईसीयू वार्ड बनाने के लिए एप्लीकेशन लगाई है। $62,000 की एप्लीकेशन है, उसमें से $20,000 होस्ट क्लब लगा रहा है, लेकिन टीआरएफ मैचिंग नहीं है। आप पिछली साइड देखिए, $1,000 पे मेरे को $500 मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे $20,000 पे टीआरएफ एक भी मैचिंग नहीं दे रही है। आप देखिए कितनी श्रूडली रोटरी फाउंडेशन ने अपने जो मैचिंग के रिसोर्सेज हैं उसको कितनी श्रूडली कम कर लिया, हमें पता भी नहीं लगने दिया और ये काम किया। होस्ट डिस्ट्रिक्ट $1,000 हमने दिया है, इंटरनेशनल क्लब में हमारा कुछ भी नहीं था। इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट से हमने $20,000 लिए, उसके $20,000 मैच हो रहे हैं, और इस तरीके से $20,000 लगा के $62,000 का प्रोजेक्ट रोटरी क्लब कोटा कर रहा है। अब यही होगा, पहले हम $6,000 लगा के $31,000 कर लेते थे, लेकिन अब हम $21,000 मिला के $62,000 कर रहे हैं, यानी 1/3 का। और ये तो हम लकी हैं, लेकिन 1/3 के बाद भी ठीक है। ओके, सॉरी, ये जो फंडिंग पैटर्न चेंज किया है इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। और आगे वाली जो स्लाइड में बता रहा हूँ आप वो देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है। एक साथ किससे अगर कोटा की ग्रांट लगाई जाती तो $20,000 में तो कोई मैचिंग कर ही नहीं रहे हैं, $1,000 का 800 करते, और ये जो 20,000 इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट का हमारे को मिला है उसके सिर्फ $16,000 ही होते। इसका मतलब $62,000 की ग्रांट में हमें 57,800 ही होते, $4,200 फर्दर आने वाले टाइम में कम हो जाएगा। ये एक ऐसी चीज है जो मेरे हिसाब से ग्लोबल ग्रांट को बैकफुट पे धकेलेगी। पिछले बार जब हमारी जो अभी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे चेयरमैन जो टीआरएफ के आर रविंद्रन, जो मेरे रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट थे, जब पिछले बार उनसे बात कर रही थी तो मैंने उनसे यही चीज पूछा। मैंने कहा सर, ये आप इतनी सी चीज के लिए क्या कर रहे हो? और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने इसका एनालिसिस किया कि ये होस्ट क्लब का और ये जो डीडीएफ का ये जो कम कर रहे हैं उसमें साल का कितना फर्क पड़ेगा, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं था, $30 मिलियन। इसका मतलब 225 करोड़ रुपए। अब आप अगर 3,000 करोड़ रुपए के अंदर 225 करोड़ रुपए भी एडजस्ट नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करोगे? हमें तो सब बोलते रहते हैं कि आप टीआरएफ में दीजिए दीजिए दीजिए, और यहाँ ये है कि अब चूंकि एनुअल फंड में कंट्रीब्यूशन नहीं आता है इसलिए हम इसको कम कर रहे हैं। अरे कंट्रीब्यूशन नहीं आता तो आप लीजिए, दूसरा कोई और सोर्स कीजिए, लेकिन आप इसके ऊपर काट चला रहे हैं। आई थिंक दिस स्टेप इज वेरी डेट्रीमेंटल, ये नहीं होना चाहिए।
हम आते हैं कि इसकी प्लानिंग के लिए क्या करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका एक कम्युनिटी असेसमेंट होता है इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा, हम भी कर सकते हैं। 2018 से उन्होंने बहुत डिटेल में लगाया है, और जब तक हम उनको ये नहीं बता पाएंगे कि इस ग्रांट से हमारी पूरी कम्युनिटी को क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या इसके बेनिफिट होंगे, किन किन लोगों को हमने शामिल किया है ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, क्या इसके दूरगामी परिणाम होंगे, इसके सोशल जो इम्पैक्ट हैं वो क्या होंगे, और समाज में इसका रोटरी की इमेज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए जरूरी है कि इसके सोर्सेस क्या हैं, कम्युनिटी की भी नीड है या नहीं है, और कम्युनिटी की नीड को है ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैसे एड्रेस करेगा, हम क्या एक्शन लेंगे जिससे कम्युनिटी का जो सोशल स्टेटस है वो इम्प्रूव हो, और इसके जो है ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होंगे, इसके मेजरेबल आउटकम कितने होंगे, और इसके क्लियर कट गोल हैं तो क्या होंगे, और इसके जो बेसलाइन डेटा है उनका क्या होगा। हमने SGVP का जो एक एजुकेशन का प्रोजेक्ट किया था, SMVS का जो किया था, और कड़ी का, हमने इन सब का गांव-गांव में भेज के करके और ये इम्प्लीकेशन करके पता लगवाया। जैसे कड़ी का किया तो वहाँ हम सोच रहे हैं कि हमने जो इसके लिए हम एक वो हार्ट केयर वार्ड की स्थापना कर रहे हैं, तो रूटीन ने हमसे पूछा कि ये कर तो रहे हो, लेकिन अहमदाबाद तो बिल्कुल पास में है, कौन कौन से गांव में कितने कितने आदमी आएंगे। तो हमने बताया उनको कि मैडम अगर किसी के हार्ट अटैक आता है तो अगर वो कड़ी के पास में है और उसको अहमदाबाद में लाएंगे तब तक तो वो खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो कितने किलोमीटर है, इंपॉर्टेंट ये चीज है कि उसको टाइम से हार्ट केयर फैसिलिटी। और फिर हमने गांव-गांव का सर्वे करके उनको बताया कि कितने लोग बाग हो सकता है पीड़ित हो, हमारे पास कड़ी के हॉस्पिटल में कितने लोग बाग आए इस चीज के लिए जिनको कि हमने रेफर किया। और ये जब सब डेटा हमने दिए तो जाके उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए ये जरूरी है कि हमारे क्लब में हम प्रोजेक्ट की कमेटी को अपॉइंट करें, और उसमें हर मेंबर का जो कि टीम बना के उसमें उसकी रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी का हम पूरा का पूरा सबको बताएं कि कौन व्यक्ति है इसको ओवरऑल प्रोजेक्ट को देखेगा, इसके फाइनेंशियल कौन कौन देखेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कौन देखेगा, ये जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है थर्ड किसी जगह पे तो वहां से इसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा, कैसे कैसे इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मैं बाद में आऊंगा। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ये हमें ये सबसे पहले सुनिश्चित करना पड़ता है कि जो हमारे फंड है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ही यूटिलाइज किए जाएं। जिस पार्टी से हमने सैंक्शन करवाया उसी पार्टी की वही मशीन आपको प्रोक्योर करनी है। अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आप रोटरी फाउंडेशन से परमिशन लीजिए, बिना चेंज के आप नहीं कर सकते। और आप ये देखेंगे कि जिस पर्पज के लिए मैंने फंड लिए हैं उसी पर्पज के लिए मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। एक क्लब कंट्रोल बैंक अकाउंट होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेसिडेंट है चला गया और फिर उसके बाद में पता ही नहीं चला कि बैंक में कौन हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। एक ऐसा पेरेनियल अकाउंट होना चाहिए, क्लब कंट्रोल बैंक अकाउंट, जो कि हमें ये बताए कि जो कि 2 व्यक्ति उस पर सिग्नेचर करने चाहिए और उसका जुडिशियस इस्तेमाल होना चाहिए फंड्स का। हमारा फिनेंसिंग का जो भी है हमारे को पूरा ध्यान रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है रोटरी के लिए कि डॉक्यूमेंट रिटेंशन का। अब जब हम ये ग्लोबल ग्रांट की प्लानिंग करते हैं और साल 1.5 साल ये प्रोजेक्ट चलता है और उसके बाद 5-6 साल हमारे को ये रोटरी में रिकॉर्ड बताने रहते हैं, तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि जो रिकॉर्ड्स हैं ये रिकॉर्ड हमारे पास किस व्यक्ति के पास रहेंगे, ताकि अगर साल खत्म हो जाने के बाद हम लोग ये नहीं कहें कि यार ये तो अभी वो टीम चलेगी, हमें तो पता ही नहीं है कि कहाँ है। तो ऐसे रिकॉर्ड को क्लब को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी एक जगह पे हो, सब व्यक्ति उनको देख पाए और वो ये सुनिश्चित कर पाए कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है। और लोकल लॉज की बेस पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम ये सोच रहे हैं उसके हिसाब से कितना है। जैसे अभी हम 6 साल तक हमारे को इनकम टैक्स के हिसाब से जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास रखने पड़ते हैं, तो आपको वो रिकॉर्ड है कम से कम 6 साल तक रखने चाहिए, लाइक सो एंड सो फोर्थ। आता है कि ग्लोबल ग्रांट को अप्लाई करने के लिए कैसे करते हैं। ये एक बहुत
एक अपना तरीके का अलग सा प्रोजेक्ट है, एक अलग है। मैं चाहूंगा कि मेहुल भाई किसी दिन जो इंटरेस्टेड आदमी है उनके लिए आप 1 घंटे का सेशन अलग रखें और सबको बताएं कि हम ग्लोबल ग्रांट अप्लाई कैसे करते हैं। लेकिन आज मैं आपको संक्षिप्त में ये बताऊंगा कि ये जो ग्रांट है ये रोटरी की साइट पे जाके आप ऑनलाइन आपको अप्लाई करनी पड़ती है। इसका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। जैसे जैसे आप उस प्रोसेस को कंप्लीट करते जाते हैं वैसे वैसे आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको सीक्वेंस वाइज ही करें। जो इंफॉर्मेशन आपके पास पहले है आप उसको पहले भर दीजिए, उसको बाद में जब भरना हो बाद में भर दीजिए। और वो आपसे हर चीज का डिटेल इंफॉर्मेशन मांगते हैं, हर एस्पेक्ट का, कि आप ये जो कर रहे हैं वो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, कैसे कैसे आपको करेंगे, कौन कौन इसको देखेगा, इसका टाइम, इम्प्लीमेंटेशन का टाइम कैसे होगा, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। और जब आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, पूरे आप उसमें ये लगा देते हैं कि कितने का बजट है, आप सब कोटेशंस वगैरह उसमें लग कर देते हैं और फिर ये बता देते हैं कि उस बजट को हम कैसे कैसे फाइनेंस करेंगे, तो ग्रांट आपको क्लोज करके और उसको ऑथराइज कर सकते हैं। क्लब प्रेसिडेंट ऑथराइज करेगा और DRFC ऑथराइज करेगा और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑथराइज करेगा। और इसी तरीके से हमारा इंटरनेशनल पार्टनर में भी ऑथराइज करेंगे। और जब ऑथराइज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ग्रांट सबमिट हो जाती है और इट इज एलिजिबल फॉर रिव्यू, और उसको वो लोग रिव्यू करते हैं। इसका जो लाइफ का जो ये मेरे लिए एक बिल्कुल एक लेसन था ऑनलाइन वर्किंग करने के लिए। और जैसे जैसे करते गए वैसे वैसे मालूम पड़ता गया कि कहने को ही लगता है कि बहुत लेंथी प्रोसेस है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास सब हो तो ये इतना इम्पॉसिबल और इतना हार्ड नहीं है जितना लोग बाग सोचते हैं। इसकी रिपोर्टिंग आजकल सब चीज चूंकि ऑनलाइन है इसलिए इसकी रिपोर्टिंग भी ऑनलाइन है। पहली रिपोर्टिंग हमारे को जो पैसे मिलते हैं उसके 12 महीने के अंदर अंदर करनी पड़ती है। और उसके बाद हर वर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए वाले पीरियड में 31 मई को करनी पड़ेगी। इसका मतलब अभी जितनी भी ग्रांट ड्यू है उनकी 31 मार्च वाली जो रिपोर्ट है वो 31 मई तक हमें करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते हैं तो फिर वही रिपोर्टिंग की प्रॉब्लम आएगी और हमारा डिस्ट्रिक्ट वापस से हो सकता है, अगर हम टाइमली कर लेंगे तब तो नहीं हो, लेकिन कोशिश मेरी भी जारी है। मैं भी सबको फोन कर रहा हूँ, रोटरी फाउंडेशन से भी सबको फोन आया कि पेंडेमिक है, सभी कुछ है, लेकिन आप अपनी रिपोर्टिंग तो भरिए। और जब फाइनल रिपोर्टिंग है, ये अपना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको ग्रांट साइट पे जाके करनी होती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो चीज है जो हम कभी सोचते ही नहीं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जबकि उस प्रोजेक्ट से किसी रोटेरियन को या उसके रिश्तेदार को या उसके फ्रेंड को या उसकी संस्था को किसी भी तरीके का बेनिफिट कैश में मिलता है या इन काइंड मिलता है या कोई फेवर मिलता है। अगर ऐसा कुछ है तो हमें बता देना चाहिए कि क्या है। जैसे मैं ललित शर्मा, मैं एक हमारे क्लब से कोई ग्रांट अप्लाई करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं एक हॉस्पिटल में डोनेट कर दूं उसको, और उस हॉस्पिटल का ट्रस्टी ही मैं हूं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा कि ग्रांट दिलाने वाला भी वही है, ग्रांट पाने वाला भी वही है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो रोटरी फाउंडेशन ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, लेकिन आप उसे बताइए कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मिस्टर ललित शर्मा चूंकि इस ग्रांट को देख रहे हैं, वो ही इस ट्रस्ट के जिसको मिल रहा है उसके ट्रस्टी हैं, और लेकिन इसमें क्या क्या बेनिफिट है, क्यों है ये, और क्यों इसको सैंक्शन किया जाए, ये हमें बताना चाहिए। पर्सनल बेनिफिट में है कि गेटिंग प्रमोशन या बिजनेस के रेफरल या पब्लिसिटी हमें मिल जाए या इम्प्रूव्ड सोशल स्टैंडिंग हो जाए, इन ऐसी कई चीजें हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिस भी चीज में थोड़ा बहुत भी हमारा सोशल स्टेटस बढ़ता हो या किसी भी तरीके की हमारे को फिनेंशियल और सोशल किसी भी तरीके की हमें इमेज में या कैसे भी उसमें हमें फायदा होता हो, तो हमें वो रोटेरियंस को वो डिस्क्लोज करना चाहिए इंटरेस्ट हमेशा के लिए। अगर नहीं होता है, जयपुर में एक ग्रांट हुई थी, उसमें जयपुर के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उनके जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट में उस ग्रांट को अप्लाई कर दिया गया और गलती से वो भूल गए ये बताना कि मैं उस ट्रस्ट में ट्रस्टी भी हूँ। बाद में जब रोटरी फाउंडेशन को मालूम पड़ा तो उन्होंने उस ग्रांट को कैंसिल किया और वो जो पैसे थे वो वापस उनको लौटाने पड़े। उसके बावजूद वो भी तब जबकि वो पैसे सब यूटिलाइज कर लिए थे, उसके बावजूद भी रोटरी फाउंडेशन को
वो पैसे वापस लौटाने पड़े। स्टीवर्डशिप एक ऐसी चीज है जो कि आजकल काफी चर्चा में है, और स्टीवर्डशिप का मतलब ये है कि जो पैसा है वो हमारा ट्रस्ट मनी है, जो पैसा हमारे पास आया है ग्रांट का उसे हम जुडिशियसली अप्लाई करें और उसी पर्पज के लिए अप्लाई करें जिस पर्पज के लिए हमें ये सैंक्शन किया गया है। तो फंड्स हैं वो मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो, ट्रांसपेरेंट बैंक अकाउंट हो, एसेट्स हो वो ये देखी जाए कि जो एसेट्स हैं वो एक्चुअली परचेज की गई है या नहीं की है, परचेज की गई है तो उसको देखा भी गया है या नहीं देखा गया है कि ये वहां लगी है या नहीं गई है। कई बार परचेज होने के बावजूद भी नहीं लगती है, ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये ड्यूली रिपोर्टेड हुआ है या नहीं हुआ है, और इसकी रिपोर्टिंग है वो टाइमली रोटरी फाउंडेशन में की गई है या नहीं की गई है। रिटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने कश्यप जी के बारे में आपको बताया कि डॉक्यूमेंट नहीं मिले, ऐसे रिटेंशन को क्लब को सुनिश्चित करना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट जब तक ग्रांट क्लोज नहीं होती है तब तक ये हमारा पास रहे। आजकल चूंकि ये केस काफी होने लग गया, इसलिए ये जो ग्रांट है क्लोज होने के बावजूद भी रोटरी फाउंडेशन इनका ऑडिट करवाता है और क्रॉस चेक करता है कि क्या ये पैसे वास्तव में यूटिलाइज हुए हैं और इसकी ग्रांट आई है या नहीं आई। जो बिल हम देते हैं कई बार तो देखा गया है कि वो बिल जिससे लिया गया उस पार्टी के पास जाके भी वो पूछते हैं कि सर ये आपने इसमें भेजा है, ये वास्तव में आपने दिया है नहीं दिया, और दिया है तो आपको पैसे कहाँ से मिले, और जो पैसे का वो अकाउंट देता है वो बैंक अकाउंट से टैली करते हैं कि ये ठीक है या नहीं। तो स्टीवर्डशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं चाहूंगा कि सब लोग आप इस पे ध्यान दें। ग्लोबल ग्रांट का हमारे यहाँ जो स्टेटस ये है कि अभी तकरीबन 18 करोड़ के जो प्लान है वो हमारे इम्प्लीमेंटेशन में है, और ये जो ग्रांट्स हैं ये वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स की हैं। 9 ऐसी ग्रांट्स हैं जो कि अप्लाई की गई है या अंडर सबमिशन है। मैं आपको एक बार हमारे डिस्ट्रिक्ट के बताता हूँ कि कौन कौन से ग्रांट्स हैं, आपको क्लियर होगा। 5 मिनट मुझे और लगेंगे सबमिट करने में। 4 कोविड ग्रांट थी जो कि हमने की, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग अभी बाकी है। रोटरी क्लब जयपुर ने एक कोविड सेंटर बनाया, विसनगर ने एक कोविड की लाइब्रेरी कोविड की लेबोरेटरी बनाई, और 5 जगह दूसरे क्लब द्वारा मिलके वेंटिलेटर लगाए, और हिम्मतनगर में 4 उन्होंने बाईपेप मशीन लगाई। प्रोस्थेटिक लिम्ब जो नारायण सेवा संस्थान है उसमें 140 लाख 1 करोड़ 40 लाख की फैब्रिकेशन, जो आर्टिफिशियल लिम्ब जो हमारे हाथ कृत्रिम हाथ और पैर लगाने का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। किडनी और यूरिनरी ग्रांट जो गांधीनगर में एक छोटा क्लब रोटरी क्लब ऑफ बीजापुर लगा रहा है। कार्डिक केयर मैंने कड़ी के बारे में आपको बताया था, हमारे डिस्ट्रिक्ट की अब तक की सबसे बड़ी ग्रांट 4 करोड़ 31 लाख को। आप देखिए 30 मेंबर भी नहीं है, लेकिन वो हमारे डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी ग्रांट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लो कॉस्ट डायलिसिस सेंटर जयपुर 150 वाश स्कूल में कर रहे हैं, जयपुर में ही 1 करोड़ 72 लाख रुपए का। वाशिंग स्कूल उदयपुर में है 86 लाख का। इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट धंधुका में 66 लाख का, और दूसरी छोटी छोटी ग्रांट्स हैं जो कि तकरीबन 1.5 करोड़ की है। जो पाइपलाइन में है वो है कि स्किन बैंक जयपुर और अहमदाबाद में हो रही है, डायलिसिस सेंटर अहमदाबाद और आबू में। एम्प्लॉयमेंट टू 1000 वीमेन 85 लाख का है, ये पूरे अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली इस क्लब को उन्होंने डिक्लाइन किया है, हम लोग उनके पीछे हैं, अगर कर देते हैं तो अच्छा है। फैकोमिल्सिफिकेशन मशीन 4 सिटीज में लग रही है। हैप्पी स्कूल भुज 50 लाख की, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट की पहली ग्रांट होगी जो कि CSR के थ्रू फंड होगी। सिटी स्कैन सेंटर रोटरी हॉस्पिटल कलोल में अब हमारे फाइनल स्टेज में है। न्यूनेटल वार्ड कोटा जिसकी मैंने फंडिंग भी आपको बताई 45 लाख की। ब्लड बैंक जयपुर और ब्लड डोनेशन बैंक कोट। 3054 का जो ग्लोबल ग्रांट है उसका सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि एक धारणा बनी हुई है, और इस हिसाब से बहुत कम लोग बाग ग्लोबल ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन हम फिर भी जो है ना जयपुर और उदयपुर रीजन से बहुत बेटर हैं कि हम लोग फिर भी एप्लीकेशन लगाते हैं। और इसका रीजन यही है कि इसकी पर्याप्त लोगों में जानकारी नहीं है। लोग बाग, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लोग बाग डिजायर्ड एफर्ट करने से कतराते हैं, शर्माते हैं, और इसीलिए वो मेहनत वाला काम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग बातें ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। हमें लगता है कि ग्लोबल ग्रांट की जो प्रोसेस है ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, और मुझे पर्सनली जो लगता है वो ये कि मोस्ट ऑफ द क्लब्स में
2 या 3 साल तक एक तरीके से एकजुट होकर काम करने वाली कोर टीम का अभाव है, और यही रीजन है कि हम लोग अच्छे प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। क्लब सीरियसली थिंकिंग नहीं करते हैं प्रोजेक्ट के लिए जो एलिजिबल ग्लोबल ग्रांट के लिए, और वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट करके ही अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि जब तक बड़े प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तब तक समाज में वो हम नहीं दे पाएंगे जो कि हो पाएगा। हमें करना क्या चाहिए, वाइबल प्रोजेक्ट जो हो आप लाइए। फॉरेन क्लब में आपको बिलीव दिलाता हूँ कि अगर हम कोशिश करें तो वो लोग भी पैसा देने को तैयार हैं। अभी मैं आपको एक विचित्र बात बताता हूँ। 5-6 दिन पहले मेरे पास पालनपुर के डेप्यूटी कलेक्टर का फोन आया, और वो मेरे को उदयपुर के एक रोटेरियन से उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई टेलीफोनिकली, और वो जो अंबाजी का जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगाने का पैसा दे रहे हैं। और उन रोटेरियन ने कहा कि सर आप तो इसको ग्रांट को लगा दीजिए, सारे पैसे मैं देता हूँ। और दोस्तों, ऐसे प्रोजेक्ट में ऐसे पैसे देने वाले लोगों की कमी नहीं है, कमी हम में है कि हम वो रिसोर्सेज ढूंढ नहीं पाते। लोकल कम्युनिटी की नीड है, वो अब जो है ना बड़े से बेहतर होती चली जा रही है। अब मुझे लगता है कि कोई भी जो समाज है रोटरी ट्री प्लांटेशन कर रहा है, या ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा है, या छोटे छोटे अमाउंट को नोटबुक दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। ये समय है कि हम बड़े और समाज को ज्यादा उपयोगी होने वाले प्रोजेक्ट के ऊपर ग्रेजुएट करें। जब तक हम छोटे प्रोजेक्ट से बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर ग्रेजुएट नहीं करेंगे और सोसाइटी को मैसिव हेल्प नहीं करेंगे, तब तक रोटरी की इमेज बन नहीं पाएंगी, और हम थोड़े टाइम बाद में हम हाशिए की तरफ धकेल दिए जाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का सेशन लेके आप देखिए, टीम बनाइए और सोचिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। पैसे, मेरा मानना है कि अगर प्रोजेक्ट अच्छा है तो पैसे आते ही हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे में खुद काम करने की ललक कितनी। अगर हम डेडिकेटेड हैं तो हम निश्चित रूप से आप सफल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट चेंजेस मैं चाहता था कि 2 मिनट में बताऊं। मेहुल भाई अगर समय है तो मैं बताऊं, वरना मैं इसको बंद करूं। आप बता दीजिए। अभी जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं, मैंने काफी तो आपको कहा है, लेकिन मैं आपको ये चाहता था कि लास्ट में ये बताऊं कि जो DDF है वो हमें जो पहले मिलता था 50%, अब 2.5% कम मिलने लगेगा। क्लब का कंट्रीब्यूशन जो पहले 50% मैच होता था वो $125 करोड़ होते हैं। अब 27 करोड़ के बजट में 225 करोड़ भी अगर एडजस्टेड नहीं कर सकते हैं तो उनको हमारे जैसा कोई गुजराती अकाउंटेंट ढूंढना चाहिए जो कि इन सब चीजों को ठीक से मिला के और काम करके दे पाए। जब तक वो हम जैसे एफिशिएंट लोगों को प्लानिंग में नहीं लगाएंगे तब तक यही होता रहेगा। और मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि 225 करोड़ रुपए TRF को लोगों से और मैचिंग करके बढ़ाने चाहिए, रादर देन कि ये छोटी छोटी चीजों से करके करने। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा कदम है जिसमें हम, मुझे विश्वास है कि ये आने वाले सालों में इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव स्टेप TRF ले। और मैं अभी कहूँगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से मैं उनका जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। मेहुल भाई। Thank you, Lalit. Thank you very much. We'll take questions one by one. जिसको भी क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेस कर दीजिएगा ताकि पता चले स्क्रीन पे, एंड we'll give chance everyone to one by one. First question, Digam. गुड आफ्टरनून सर। मेरा ये क्वेश्चन था कि फिलहाल जो अभी आपने बात बताई अंबाजी के ऑक्सीजन प्लांट लगाने की,
तो अगर सिमिलर कोई प्रोजेक्ट हमें कहीं करना है ऑक्सीजन प्लांट के लिए, तो मिनिमम टाइम कितना लग सकता है उसमें, मतलब ग्रांट सैंक्शन होने में? अभी फॉर्चुनेटली हमारे जो गवर्नर है राजेश जी ने इन्होंने 10 एक दिन पहले चंद्रा पारमर जो हमारी ग्रांट कोऑर्डिनेटर है उनको एक लेटर लिखा था और कहा था कि अगर आप बहुत टाइम लगाती हैं हमारे दूसरे प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने में, कोविड वाले अगर एप्लीकेशन हो तो उसमें क्या किया जाए। तो उसने लिखा है कि मैं आपका जो है ना जितना जल्दी होगा यानी उसके हिसाब से विद इन 7 वर्किंग डेज वो सैंक्शन कर देगी। और यही रीजन है कि हम लोग ये कोविड ग्रांट वहां पे लगा रहे हैं। और जब मैंने वो कॉरेस्पॉन्डेंस उनको अमेरिकन डोनर को भेजी, देन ही इमीडिएटली टोल्ड मी कि ललित भाई ऐसा है तो आप ये प्लीज इसको कर लो और आप इसको ग्लोबल ग्रांट में ले लीजिए। और कल पेंडेमिक होने के बावजूद भी मैं अंबाजी गया, यहाँ पूरी डिटेल लेके आया, आज मैं इसको बैठ के एप्लीकेशन को लगा रहा हूँ। ऐसी अगर और कोई आपके पास ग्रांट है तो आप मेहरबानी करके मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए निगम भाई। और मैं निगम भाई को ही नहीं, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपने यहाँ सबको बोलना चाहूंगा कि ऐसी कोई है तो आप प्लीज। ठीक, थैंक यू। Thank you. Khushbu, you can ask a question. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपने बोला कि टीआरएफ फंडिंग और एनुअल ग्रांट्स में पैसा इकट्ठा ज्यादा करना चाहिए, फंडिंग ज्यादा करना चाहिए, तो कैन यू गिव अस सम सजेशंस हाउ यू शुड इंक्रीज योर टीआरएफ फंडिंग या एनुअल फंडिंग फॉर द क्लब? एब्सोल्युटली 3-4 चीजें हैं। जैसे हमारे क्लब में भी अगर हम डोनर हिस्ट्री निकाल के देखते हैं तो 25 आदमी में से 20 आदमी ऐसे निकलते हैं जिन्होंने कभी रोटरी फाउंडेशन में दान दिया ही नहीं। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम उन लोगों का पूल बनाएं जिन्होंने कभी दिया नहीं, उन लोगों से लेने की कोशिश करें। और अनफॉर्चुनेटली हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, वो 300-400 आदमी है जो हर साल देते चले जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे ही पैसे आते हैं। हमने कभी जो अनटैप्ड रिसोर्सेज है उसको कभी टैप करने की कोशिश नहीं की। और जो दूसरा है वो ये कि हमने हमेशा ये सोचा कि हम रोटेरियन से ही पैसा लें, कभी ये नहीं सोचा कि रोटेरियन से रोटरी के बाहर भी जो सर्कल है उससे भी पैसा लिया जाएगा। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी जो है ना सबसे बड़ी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसपे हमने कभी काम नहीं किया, लेकिन अब अभी जरूरत है कि हम लोग इसका काम करें। Thank you. Yes, there was a question from CA Keyur Thakkar from DISA. Chat box में लिखा था, Keyur, you are there? Keyur? Yes, sir. Yes, sir. You can ask your question about that gas this thing. Okay. Good afternoon, Gas sir. fired. Good afternoon, ललित जी। कैसे हो केयूर? बस सर बढ़िया एकदम। अच्छा सर, वो आपने बोला ना वुड फायर से गैस चैम्बर में कन्वर्ट किया, वो प्रोजेक्ट रोटरी फाउंडेशन ने रिजेक्ट किया था, तो वो सर एनवायरनमेंट के अंदर नेक्स्ट ईयर से एलिजिबल हो पाएगा? हाँ, यस, नेक्स्ट ईयर से लागू हो। नेक्स्ट ईयर से। Rajendra Nagar, you was having some question. Rajendra? I'm not having any question, but I would love to be a part of the team. Lalitji said if somebody wants to learn in detail regarding the application of global funding, so I would be very much interested in knowing about because I have a dream. So sooner or later, someday I will definitely have my dream fulfilled because I have a global grant project in hand. But I'm looking for proper sources and proper direction so that it can be given the light of the day. राजेंद्र भाई, आप पर्सनली मेरे से मिलिए, आप फोन पे बात कीजिए। और मेहुल भाई, मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, जब भी अपन अपनी टीम बनाते हैं, the first person to be with us will be राजेंद्र भाई। आप सबसे पहले इनका नाम लिख लीजिए ग्रांट्स में। ठीक है। लेकिन सर ललित जी, लेकिन एक यानी आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो अभी रोटरी में खाली 7 साल ही हुए हैं, लेकिन पीपल से कि गेटिंग DDF for a global grant project is quite difficult. There is a lot of favoritism. There is a lot of pushbacks and they are not willing to support some projects. I don't know for what reason. तो ये सही है कि गलत है मेरे को नहीं पता, but this actually puts you back कि जब DDF मिलेगा ही नहीं तो फिर क्या आपने
इसको करने का? ये काफी हद तक आपका जो सोचना है, ये जनरल लोग बाग भी यही सोचते हैं, लेकिन चूंकि मैं टेबल के उस साइड में बैठा हूँ, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि इस बार हमारा DDF सिर्फ $32,500 ही था और हमने 70,000 भीख मांग के सैंक्शन के लिए डाल दिए और $25,000 का अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि आता है तो कर लेते हैं। इसका मतलब तकरीबन $1 लाख से ज्यादा का DDF हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे। आक्षेप लगाना बहुत अच्छा है कि फेवरेटिज्म होता है जहाँ पैसे कम होंगे और 4 जने अगर मांगने वाले हैं तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो बेटर आदमी है उसी का ही किया जाएगा। लेकिन जरूरी इस चीज का है कि एज ए टीम अगर हम बैठते हैं और अगर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि नहीं यार, दिस प्रोजेक्ट विल नॉट अलाउड टू बी पुट इनटू स्क्रैप बुक, तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि यार इसके लिए DDF कहाँ से करे जाए। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजेश को अप्रिशिएट करूंगा कि इस बार DDF लेने के लिए उन्होंने 534 में से एक वो खुद है, इनको छोड़ दे तो 533 डिस्ट्रिक्ट में इंडिविजुअली ईमेल लिखा है कि सर हमारे को आप इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा दीजिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज तक पहले कभी इस तरीके का काम नहीं हुआ और यही वजह है कि हम एडिशनल DDF ले पाए। अब जब कोई भी काम है राजेश कर सकता है तो उसके बाद आने वाले जो है लोग भी कर सकते हैं। सर ये पारदर्शी और ये ओपननेस और ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। राजेश जी ने काफी हद तक ये क्लैरिटी लाने की कोशिश की है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि थिंग्स आर सो ट्रांसपेरेंट एट दिस आवर। नहीं और मैं तो इस बार एक काम और करने वाला हूँ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कभी नहीं हुआ। एक चार्ट बना के जो है ना, मैं जून में सबको मेल करूंगा कि कितना DDF था, कितना हमने किस किस प्रोजेक्ट को यूटिलाइज करने के लिए किया और कितना दूसरे लोगों से लेके हमने यूटिलाइज किया, ताकि लोगों को ध्यान रहे। और ये जो भ्रांतियां हैं कि नहीं ये जो फेवरेटिज्म होता है और भाई भतीजा चलता है, ये तकरीबन ये जो मिथ है ये लोगों का टूटेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 99% केसेस में ऐसा होता नहीं। ये होता तब है जबकि क्लब बार्गेनिंग करता है। क्लब चाहता है कि मैं खुद तो पैसा नहीं लगाऊं और डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट का फंड ले, तो फिर बार्गेनिंग दोनों तरफ से चलती है। सही बात है। So nice of you, Lalit bhai. I mean, you have given lot of clarity to lot of people out here. Thank you, Rajendra. I request all other participants to put that question because कोई ये ना समझे ऐसे राजेंद्र ने बताया कि मैं तो 7 साल तक, खुशबू is a very young and she has also put her question. I request everyone, किसी के पास जो भी क्वेश्चन है कोई झिझक रखने की जरूरत नहीं, हम सब यहाँ साथ सीखने के लिए आए हुए हैं। जो भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल पूछिए ताकि आगे इसके ऊपर बात हो सके and the things would be clear to you. सर एक क्वेश्चन है मेरा। Yes. This is KC अग्रवाल from गांधी। हाँ जी अग्रवाल साहब, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी आवाज से पहले। यस सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम लोग यहाँ पे ये रोटरी फॉरेस्ट एक लगा रहे हैं, वो आपका जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से इस साल से ही शायद वो आ रहा है, कॉल कर रहा है कि भाई ये एनवायरमेंट के ऊपर ये प्रोजेक्ट, तो क्या अब हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पे $2 लाख तो खर्च कर चुके हैं और हमारा ये प्रोजेक्ट देखा जाए तो 6.5 लाख से ऊपर डॉलर का है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये इसमें क्या हम एलिजिबल हैं अभी वापस, अभी चूंकि ऑलरेडी आप एलिजिबल तो है, लेकिन आपको और मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अगले बार मेरे पास DDF जो है $10,000 का है सिर्फ। अब उससे आपके तो जीरा भी नहीं लगेगा सर, ये तो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है मेरा। तो बेसिकली आपको और हमारे को बैठ के पूरे दुनिया भर में लोगों को लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और अगर निश्चित रूप से हम एक टीम बना के काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो काम है ये निश्चित रूप से कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। सर ये अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो मैं चाह रहा था कि ये थोड़ा फ्री हो जाए कोविड से, तो एक बार आप पर्सनली अगर विजिट करके हमको थोड़ा पर्सनली गाइड करो कि कैसे करना है, या मैं अहमदाबाद आ जाऊं।
तो एक क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके हिसाब से आगे मूव करें, क्योंकि हम इसमें काफी कुछ आगे बढ़ चुके हैं और हमारा प्रोजेक्ट तो क्योंकि अभी हमको तो बरसात से अभी स्टार्ट होगा, मानसून सीजन आ रहा है, तो मानसून सीजन से पहले ही हमको प्लांटेशन में लगे पड़े हैं। हमको अभी कम से कम हमने 20,000 प्लांट डाल दिए, 50,000 प्लांट का टारगेट है हमारा मानसून से पहले 30 जून से पहले लगा देने का, और टोटल 1 लाख प्लांट हम डालने वाले हैं सर। तो ये क्या है कि 30 जून के बाद जब आप बोलो हमको टाइम दो, तो आप लोग या तो आप आ जाओ या हम आ जाएं वहां पे, और आकर के थोड़ा डिस्कस करके इसके बारे में आउटलाइन करें कि कैसे इस पे आगे बढ़ा जाए। नहीं, अपन इस पे चर्चा कर लेते हैं, और अगर मेरे को वहाँ आना हुआ तो मैं आ जाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी बहाने भाभी जी के हाथ की वो क्या बोलते हैं नमकीन खाने को मिलेगी, जो कि बहुत साल से नहीं खाई है मैंने। हम तो कई बार सर आपको याद करते हैं, लेकिन क्या करें अभी आप बिजी है, थोड़ा आना नहीं हुआ। पिछली बार भी आपका वेट कर रहे थे, आप आएंगे, आप नहीं आए, कोई कारण नहीं आ पाए, बिजी हो गए आप। नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट ऑफ, लेकिन केसी भाई आपके कहे बिना मेरे को ये ध्यान है, क्योंकि जब मैंने आपको रिजेक्ट किया था, आपने प्रोग्राम भेजा था, तो मुझे आपको फोन करने में भी बड़ी मुश्किल थी कि यार मैं कैसे कहूँ कि ये अपने एरिया फोकस एरिया में नहीं आ रहा है। तो लेकिन जब उसके बाद बात हुई और अपनी ये थी कि अपन नेक्स्ट ईयर से करेंगे, तो अपन निश्चित रूप से इसको लेते हैं। मैंने सर आपका मैसेज मिल गया था मेरे को, लेकिन फिर हम रुके नहीं, क्योंकि हमारे पास रुकने के लिए समय नहीं था, इसलिए हम तो आगे बढ़ गए। मैंने कहा जब होगा जब करेंगे, तब तक अपने सोर्स से चालू रहे, और हम आगे बढ़ भी गए काफी कुछ, हम लोग काफी इसको डेवलप भी कर दिया काफी। और मैं सभी ऑडियंस को इस बात के शेयर करूंगा कि हमने जो प्लांट लगाए हैं वो आज 15 फुट से ऊपर की हाइट के हो गए हैं। एंड सारे के सारी जो अपना जो कंडला पोर्ट अथॉरिटी और जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और फॉरेस्ट अथॉरिटी, जो सब लोगों को हमने इनवाइट किया था ये पेंडेमिक स्टार्ट होने से पहले, दे ऑल हैव विजिटेड, टेक ए विजिट, एंड दे आर सो हैप्पी एंड सो अप्रिशिएटेड कि इवन गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इतना डेवलप नहीं कर सकता जितना तुम लोगों ने इसको 6 महीने के अंदर में इतना बड़ा इतने ट्रीज की हाइट जो है ना 15 फुट लेके गए। सो लग रहा है पूरा फॉरेस्ट लग रहा है पूरा। आप आएंगे तो आप रियल में लगेगा कि हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर में ये भी फॉरेस्ट भी हो सकता है क्या। और फॉरेस्ट हमने डेवलप कर दिया, और हम इसको कर रहे हैं। पूरा डेवलप नहीं हो पाया, लेकिन कर लेंगे इसको बहुत जल्दी। हम लोग लग रहे हैं, धीरे धीरे करके कर लेंगे सर। थैंक यू केसी अग्रवाल साहब। फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल, मैं आपको बता दूं कि गांधीधाम में 30 एकड़ जगह में एक फॉरेस्ट वो लोग बना रहे हैं सिटी के अंदर। इसकी केसी अग्रवाल साहब आई पर्सनली विजिटेड, मैं जाके आया और बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सी देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मेहुल भाई, मेरा ऐसा सजेशन है कि ये अग्रवाल जी के इस प्रोजेक्ट में इफ सम अदर क्लब्स कैन जॉइन हैंड्स, कैन वी Yes, so you can talk to KC Agrawal ji. They will definitely welcome that step. Most welcome. But there is another question from one. मैं देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे, यूजर सिर्फ यूजर लिखा हुआ है। सर समीर शाह। हाँ समीर भाई, समीर शाह गांधीधाम से। लाइट आउट। यस बोलिए समीर भाई। कैसे हो? बस बस एकदम फाइन सर। बस केसी अग्रवाल जी ने जो फॉरेस्ट की बात की उसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे आप अभी विजिट करेंगे या हम आएंगे वहां पे आपसे मिलने के लिए, तो और भी क्लेरिफिकेशंस हैं। जैसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है ये हमारा, लगभग 1 साल से चल रहा है और 20,000 पेड़ लगा चुके हैं। तो इसमें ग्लोबल ग्रांट किस तरह से अप्लाई करेंगे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में, उसमें कुछ बाइफिकेशन करेंगे या कैसे, तो वो गाइडेंस आपसे चाहिएगा उस टाइम को, इसको कैसे आगे बढ़ा जाए इस प्रोजेक्ट में। समीर भाई और केसी भाई, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप ये पहली बात तो सोच छोड़ दीजिए कि हम अगले साल से क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन एक ही बात है, आई एम पार्ट एंड कंसिडर मी पार्ट एंड मेंबर ऑफ योर क्लब। और निश्चित रूप से मेरा 100% सपोर्ट आपके इस प्रोजेक्ट के लिए रहेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम लोग करेंगे। मेहनत तो करेंगे सर आपके साथ, आपका हेल्प मिलेगा तो मेहनत तो जरूर करेंगे। और एक और बात पूछनी थी सर, जैसे गेला भाई ने ये अपना आज की मीटिंग के पहले ही जो कोविड हॉस्पिटल के बारे में बात की थी, अभी उसमें 36 बेड की हॉस्पिटल ऑलरेडी चालू हो चुकी है और 36 बेड की और भी आगे प्रोसेस करना है, ऐसा गवर्नमेंट ने हमको बताया है। उसके लिए फंडिंग चाहिए, तो उसमें कुछ अभी कुछ कर सकते हैं ग्लोबल ग्रांट से या कोई दूसरी ग्रांट से, ऐसा कुछ? अभी एक बार आप मेरे से इसके बाद में बात कर लीजिएगा, अगर फिजिबल लगता है तो निश्चित रूप से करेंगे। Okay, thank you. Anyone else? Yes, मैं मेहुल भाई। Yes, पवन भाई।
गुड इवनिंग ललित जी। एक मिनट पवन भाई, एक मिनट, जिसको भी क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेस करके रखे ताकि मुझे पता चले। हाँ पवन भाई कंटिन्यू। ललित जी, क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो फाइनेंस की वजह से डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो पा रहे हैं, और वो इस तरह की कोई प्रोजेक्ट्स की अगर हमारे पास लिस्ट हो और डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर्कुलेट हो कि कोई मैन पावर की कमी है या कोई फाइनेंस की कमी है जिसकी वजह से वो क्लब उस प्रोजेक्ट को नहीं कर पा रही है, तो क्या ऐसे कोई प्रोजेक्ट हम लोगों को या पूरी डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट हो सकते हैं कि जिससे कि दूसरी क्लब उसका बेनिफिट उठा सके, या उसके अगर पास में फाइनेंस है या मैन पावर है ताकि वो कर सके? क्या कैन यू गाइड इन दिस मैटर? एब्सोल्युटली। और मुझे तो ये सोच के लग रहा है कि ये बात मुझे क्यों मैं क्यों सोच नहीं पाया। निश्चित रूप से 2-3 प्रोजेक्ट हैं ऐसे जिसके लिए फाइनेंशियल हार्डशिप हो रही है। मैं तो आप हमें बताइए कि क्योंकि हम शायद हम लोग या हम या कोई भी दूसरी क्लब वो कर सके, हमें ऐसा प्रोजेक्ट सजेस्ट करिए आप। नहीं, बेसिकली जैसे एक रोटरी क्लब मालपुरा, हाँ जी, ये 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाने का और उसके साथ जो भी है करने का सोच रही है, और उसके साथ उसमें कुछ बेड भी हैं और उसकी टोटल कॉस्ट $30,000 के आसपास है। उसमें चूंकि ग्रामीण क्लब है, सब एवरेज जो व्यक्ति हैं पैसा ज्यादा नहीं लगा सकते। हमने लोगों से डीडीएफ के लिए पूरे विश्व में लेटर लिखे हैं, लेकिन वो मैं सर्कुलेट सबको करता हूँ। ये चीज है, दिस इज वेरी गुड एंड वेरी नोवेल आइडिया, एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू कि ये जो चीज है ये है। दूसरा, और एक और क्लब है उसमें कुछ, एक रोटरी क्लब कलोल के लिए जो हम सिटी स्कैन लगाने का सोच रहे थे, उसमें भी हमारे कुछ फंड कम पड़ रहे हैं, और मैं ये दोनों की डिटेल आपको सबको सबमिट करता हूँ मैं, और मैं कोशिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो तो आप हमारे को फाइनेंशियल हेल्प दीजिए। बिल्कुल। कृणाल। यस सर। हाँ ललित जी। कृणाल, यू कैन पुट योर। हाँ, कैसे हो कृणाल भाई? बस सर बढ़िया एकदम। सर मेरा ये कहना था कि जैसे हम लोग ये टीआरएफ सेमिनार जैसे जून में होते हैं ना, उसके बाद पूरे साल में सर कोई भी ऐसा वो क्या बोलते हैं सेमिनार जैसा नहीं रहता जिसपे आगे के डिस्ट्रिक्ट बैंक कैसे मिले हैं या कब कैसे प्रोजेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि पिछले जो भी रिकॉर्ड देखे जाए ना उसमें सर 15-20 क्लब ही पार्टिसिपेट करती है, ज्यादा क्लब पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो सर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि इसकी जो आप बात कर रहे थे कि कोर टीम बनाई जाए और वो हर एक क्लब को समझाए कि भाई ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट रख सकते हैं या ये प्रोजेक्ट पे इस हिसाब से प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि पूरे साल में फिर वो लेस हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हम लोग भी पिछले 4-5 साल से जो मेंबर्स है रोटरी के, तो उनको गाइडेंस भी वो कम मिल रहा है कि हम लोग ये प्रोजेक्ट कैसे रखें, तो हम भी वो डर रहे हैं कि ये रखे रिजेक्ट हो जाएगा, क्या करें इसके लिए। जैसे लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी सर एक बार कि वो एक आध प्रोजेक्ट हमने भी पिछले साल रखा था और उसका आगे नहीं हुआ था, तो हम लोगों को भी वो डर रहता है, हमको भी क्लब में से यही आता है कि भाई रहने दो, ये नहीं होता है, ये होता है। तो सर उसके लिए कुछ कर सकते हैं हम लोग, और छोटे छोटे रिकॉग्निशन कर सकते हैं। जैसे कोई $250 में जैसे इस बार था, तो अगर कोई $100 देता है क्लब के मेंबर में जो अपने एनुअल फंड में जा रहा है, तो उसको जैसे डीजी सर्टिफिकेट्स है या कोई छोटा सा मोमेंट है जो उसको जीओई के टाइम पे या कोई दूसरे क्लब एक्टिविटीज के टाइम पे उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, तो उससे भी हमारा फंड बढ़ सकता है सर। निश्चित रूप से ये भी बिल्कुल, ये $100 का जो आपने बोला ये बिल्कुल नोवेल आइडिया है, और इसके लिए हो सकता है एक अलग से पिन बना दो या आपको एक एप्रिसिएशन लेटर दे दो या जो भी कुछ है, और लोगों को यही चीज चाहिए। आज मैं भी अगर खुद कोई चीज कंट्रीब्यूट करता हूँ और कोई उसको अप्रिशिएट करता है, तो अंदर कुछ कहो या नहीं कहो लेकिन दिल में खुशी तो होती है। यस सर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अगर वो रिकॉग्निशन रोटरी के हाईएस्ट लेवल से आता है तो फिर then that pleasure is unbounded। तो ये चीज है जो करनी चाहिए, और जो आपने कहा कि जो ये करने चाहिए प्रोग्राम दरअसल होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रोटरी फाउंडेशन इतना सूखा सब्जेक्ट लोगों को लगता है कि यार ये चीज क्यों करें। लेकिन मैं आपको सभी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि एक बार इसका जो नशा है वो ऐसा ही है कि जब तक चढ़ता नहीं है, लेकिन एक बार चढ़ना शुरू हो गया उसके बाद आप जिंदगी भर इस रोटरी फाउंडेशन से दूर नहीं जा पाएंगे। मैं आपको यही कहना चाहूंगा। आज अभी मैं एक बड़ा आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि पिछले दिनों मुझे कोविड हुआ और 15 दिन तक मुझे अकेले घर में रहने का मौका मिला, क्योंकि मेरी पत्नी यूएसए में है और मैं अकेला ही 15 दिन आइसोलेशन में था। एंड इन 15 दिन में कुछ लोग तो कंटाल जाते हैं, लेकिन इन 15 दिन में जितना
फाउंडेशन का काम मैंने किया उतना मैंने पूरे साल में नहीं किया। और वो भी इसलिए, और ये नई नई चीजें सोचने को आई कि यार फर्दर ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि जिंदगी के में इस स्टेज में आके रोटरी में अगर कुछ देना है तो अगर आप फाउंडेशन ग्रांट के थ्रू अगर दे सकते हो तो शायद आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। हम तो बारे में सोचते नहीं है, जिस दिन से हमने सोचना शुरू किया और ये लगा, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि ये सब्जेक्ट लोगों को थोड़ा रंग लगे या इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगे, लेकिन ये जो ग्रांट्स हैं ये रोटरी की जान है, ये रोटरी की आत्मा है। ये ऐसी चीजें आज अपने को 1 के 3 तो नहीं मिलते हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर आप 50% लगाओ तो 50% तो मिल ही जाता है, और वो भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आज 30,000 के प्रोजेक्ट में अगर $15,000 हम बाहर से ले पाते हैं तो क्या क्या दिक्कत है। लेकिन इस चीज के लिए कोई सोचता नहीं है, इसलिए कि ये थोड़ा इसमें फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है, तो ज्यादा तो सभी में होती है। आज अगर 10 लाख रुपए की बैंक में हमें, तो आप कभी बैंक के चक्कर लगा के देखो, आपको मालूम पड़ जाए कितने पेपर देने पड़ते हैं, कितने आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। तो जो पैसे देने होते हैं तो वहां पे कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, तो वो करनी पड़ेगी, लेकिन उससे हमें शाई अवे होने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत इस चीज की है कि हम उसके पीछे लग जाएं तो पैसे मिल जाते हैं, वरना नहीं मिलते। थैंक यू कृणाल। थैंक यू कृणाल। कृणाल, ललित भाई, मैं आपसे, आपने जो बात बताई कृणाल का क्वेश्चन था, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा अगर परमिशन एक बात कहना चाहता हूँ कि टू ऑल पार्टिसिपेंट्स हियर, जो कृणाल ने बताया कि हम छोटे छोटे ग्रुप में या अपनी क्लब में भी एक कमिटी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, दैट वी कैन सर्टेनली डू, नॉट नेसेसरी किसी प्लेटफॉर्म पे, यहीं पे अगर हम लोग अपनी क्लब के ऊपर भी कोई एक फाउंडेशन पे सेमिनार रख सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, या नॉट नेसेसरी ऑफिशियल, क्लब में जो दोस्त इंटरेस्टेड है उनके लिए भी रख सकते हैं, तो धीरे धीरे एक टीम बनती जाएगी। एंड ललित जी एंड ऑल अदर आवर पीडीजीज आर वेरी हैप्पी टू ज्वाइन एंड गाइड अस एट एनी टाइम। तो अगर ऐसा हो सकता है तो हमें करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे हमारी भी एक टीम फाउंडेशन के लिए बनती जाए पूरे डिस्ट्रिक्ट। Anyone else? मेहुल भाई, मैं एक चीज थोड़ा शेयर करना चाहूंगा कि कल मेरी स्पेन में हमारे ग्लोबल ग्रांट के पार्टनर है, उनसे बात चल रही थी, और उन्होंने मुझे दिल्ली के गवर्नर जो आने वाले हैं उनका एक ब्रोशर भेजा, और मैं चाहूंगा कि मैं ब्रोशर आपको मैं भेजता हूँ, आप सब जगह कीजिए कि लोग बाग कितने प्रोएक्टिव है। यानी 3 महीने पहले उन्होंने दुनिया भर में लेटर भेज के और अपने उसने प्रेडिक्ट किया कि सर मैं ये चाहता हूं कि मैं 50 ग्लोबल ग्रांट करूं, और ये मेरी ग्लोबल ग्रांट है, और इसमें मेरे को आप कितना पैसा देके क्या क्या सहायता कर सकते हो वो बताओ। यस, वेरी गुड, आप मुझे भेजना। तो देखिए, इस तरीके का प्रोएक्टिव एक्शन हमें रखना चाहिए, एंड वी कैन डू इवन। ये जो हम लोग स्टडी सर्कल की बात कर रहे हैं, शुरुआत मैंने ललित भाई को सिर्फ ये बताया था कि ललित भाई हमें 5 फाउंडेशन के बारे में वी मस्ट डू ये, और हमें सब सीखेंगे। एनी क्वेश्चन? आई वांट वन यस भरत भाई, यस भरत भाई। ललित भाई, ये जो 2 ग्रांट है, एक तो डिस्ट्रिक्ट की और एक है ग्लोबल ग्रांट। मैं कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट की जो ग्रांट है छोटी, अपने यहाँ पे भी 150 क्लब्स है, and district government is not having that much fund, तो एक ऐसा कुछ सर्कुलर नहीं हो सकता है 2 कैटेगरीज कि these are the actually categories in which you can get it a small amount from the district, you see, so the जो भी क्लब है छोटा प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है, ग्लोबल ग्रांट के लिए they have to actually face a lot of trouble, but if the category is fixed, these are the items by which you can get the amount. You may not, but the categories, if the club is doing very well, so they can actually do the progress upon that particular line and they can complete their service project. ऐसा कोई कैटेगरी फिक्स हो जाए कि नहीं ये है, इसमें बस इतनी आइटम आएगी भाई, इतनी सर्विस प्रोजेक्ट आ सकते हैं छोटे छोटे, और इसमें डिस्ट्रिक्ट से मिलेगी, ग्लोबल ग्रांट की कहो तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो means the figure is required to be known to each and every club. That is my, if it is possible. अब मैं आपको, आपने बोला आइडियली ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप प्रैक्टिकली उस पर जाइए कि अगर किसी व्यक्ति के पास $32,500 का ही DDF हो और उसके सिर्फ 50% यानी 16,000, तो 160
क्लब में अगर आपको देना हो $16,000 देना हो तो कितना इक्विटेबल जस्टिस होता है। सबको नहीं दिए जा सकते, लेकिन अगर सबको भी हो तो नहीं होता। और उसके बाद जो बड़ी ग्रांट है $16,000 अगर इसके अंदर चले जाते हैं तो बड़ी ग्रांट में क्या हो। एक मिनट, मेरा यूएसए से फोन है, मैं उनको बोल देता हूँ कि मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हेलो नगीन भाई को 15-20 मिनट में फोन करता हूँ, है ना? ओके ओके, थैंक यू। ये वो नगीन भाई हैं जिनके लिए मैं बोल रहा था कि जो अंबाजी में पैसा लगा रहे हैं। एंड बिलीव मी, आने वाले 2 साल में इनसे जम के रुपए लेने वाला है हमारा डिस्ट्रिक्ट। ये वो कामधेनु गाय। Anyone else? Any other question? ललित भाई, आपने एक बात बताई कि हाउ टू अप्लाई फॉर ग्लोबल ग्रांट, उसके ऊपर 1 घंटे का सेशन रखो। एंड यू स्पोक समथिंग अबाउट स्टुअर्डशिप। तो ये दोनों चीज के ऊपर रखे तो क्या 1 घंटा लगेगा? तो हम लोग एक सेशन एक और भी इसके ऊपर रख सकते हैं ताकि टीआरएफ की बात खत्म हो जाए। ग्लोबल ग्रांट कैसे अप्लाई की जाती है, मेरे ख्याल से ये एक स्पेशल सब्जेक्ट है, 30-35 मिनट लगते हैं। अच्छा, तो ये अगर कर लें तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी बेटर। अच्छा, एवरीवन यानी सबकी इच्छा है तो करें हम लोग क्या एक तीसरा सेशन इसके ऊपर कभी? अगर सब ओके, कहते हैं चलो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो मैं आपके साथ बात करके 1-2 दिन में फिक्स कर लेंगे। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम राजेंद्र सुराना। राजेंद्र, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आप बात कर सकते हो। राजेंद्र इज फ्रॉम पाली। यस राजेंद्र जी, आप बात कर सकते हैं। हाँ, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा राजेंद्र जी। हाँ सर, आप म्यूट हो, आपकी आवाज नहीं है। हाँ हाँ, मैं अभी सर अब हाँ अभी आ रही है, अभी आवाज आ रही है। पहले तो सर ललित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस ढंग से आप जो लैंग्वेज में समझाते हैं, जैसे स्कूल में बच्चे समझते हैं ना, वैसे समझ आता है। इतनी अच्छी लैंग्वेज ढंग से समझाता है। हाँ, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सर, मेरा हाँ, और बहुत अच्छा समझा सर, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, पिछली बार का भी और इस साल का भी। मेरा एक क्वेश्चन था सर, अभी पाली में सर कोविड सेंटर बना है रोटरी भवन में 53 बेड का। हाँ जी। उसमें सर जैसे कोई भी हमारे को, जैसे हमने पूरा आईसीयू वार्ड बनाया है सर, जिसमें पाइपलाइन वगैरह सब फिट की है, करीबन 20-25 लाख का खर्चा किया है। तो सर इसमें भी क्या ग्रांट मिल सकती है सर? जो पैसा खर्च ऑलरेडी हो चुका है उसके ऊपर ग्रांट नहीं मिल पाएगी, लेकिन अगर आप कुछ और खर्च करना चाहते हो तो उस पे ऊपर निश्चित रूप से हम लोग कार्य कर सकते हैं। जैसे सर अभी वो जो रोटरी, वो जो अभी ऑक्सीजन मशीनों की जनरेटर की बहुत जरूरत है सर हमें। हाँ, अभी हमने 15 जनरेटर तो हमने मंगा चुके हैं और 53 बेड का आईसीयू का पूरा लाइन लगा चुके हैं सर। मतलब वो अलग से चलेगा सर, और जो ऑक्सीजन बैंक बनाया हमने वो अलग से है सर। तो इसमें सर और हमें अगर जनरेटर की आवश्यकता पड़ती है तो क्या वो ग्रांट से मिल सकती है सर? बिल्कुल 100% मिल सकती है। तो सर इसके लिए मुझे किससे संपर्क करना पड़ेगा? ललित जी से। मेरे से करना पड़ेगा सर। आप ललित जी से। आप ग्रांट के लिए आप और अमरचंद जी कभी भी रात को 12 बजे भी फोन करेंगे तो मैं आपका फोन उठाऊंगा। सर छोड़ सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, अभी जो ये बेड का ये सर कल हमारे स्टार्ट हो जाएगा सर ये, और आपने इसके फोटो वगैरह देखे होंगे सर, अभी पूरे इंडिया में चल रहे हैं सर ये और आपका तो अशोक महाजन जी ने ट्वीट करके भी बहुत आपके लिए तारीफ की है और बहुत बढ़िया काम किया आप। हाँ सर, अच्छा चल रहा है हमारा काम। और हमने सर अभी ऑक्सीजन बैंक का भी बना दिया है ताकि घर घर में हम ये ऑक्सीजन दे सके सर। वाह, ग्रेट, थैंक यू। हाँ, तो मैं इसका विवरण सर आपके मैं शेयर करता हूँ और मैं आपसे बात करता हूँ। मैं यहाँ जो भी अटेंड कर रहे हैं, मैं उनको एक बात रोटरी क्लब पाली के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा समृद्ध अगर कोई एरिया है तो वो पाली का है। यहाँ के बारे में कहावत है कि चाय में भी ये लोग केसर डाल के पीते हैं। बिल्कुल सही बात इतने और ये हंसी मजाक की बात नहीं है, ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल सच बात है। हाँ, खान पान सबसे ज्यादा उच्च और सबसे ज्यादा रिच
अगर किसी जगह का है तो ललित भाई पैसे अगर सबसे ज्यादा किसी भी एक क्षेत्र में कहीं पे राजस्थान में मिलेंगे तो दैट वुड बी इन पाली, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि समृद्ध होने के कारण ही ये लोग इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। सर समृद्ध के अलावा सर पाली को यहाँ दानदाता है सर, जो समृद्ध तो सर गुजरात में बहुत है, लेकिन यहाँ लोग है ना किसी की सहायता करने के लिए हर समय आगे रहते हैं सर। 100% सर। यस सर। अभी तो सर मैं इसके डिटेल आपको सर मैं शेयर करता हूँ। हाँ क्या हो सकता है सर? श्योर। हाँ ठीक है। वत्सल, यू हैव क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप पूछिए। ललित जी, एक आध सेशन में अपने 2-3 लाइव एग्जांपल्स जिसने ग्लोबल ग्रांट ली है उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ इफ वी कैन स्टडी दोस, आई डोंट नो इफ इट कैन बी डन, पर तो एब्सोल्युटली वत्सल, दिस कैन बी डन एंड दैट वुड बी माय प्रिविलेज। और मैं तो ये चाहूंगा कि जितने ग्रांट हुई है मैं सबको ये जो है ना ये सार्वजनिक पेपर है और सबके साथ शेयर करने में क्या दिक्कत है, हम लोगों के बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। वो जितनी ग्रांट है मैं सबका, आप मेरे को आपका ईमेल नंबर भेज दीजिएगा, मैं आपको सब ये जो ग्रांट के डेटा भेज देता हूँ। थैंक यू। नहीं, मैं ये कहना था ललित जी, तो हम लोग एक सेशन रखे जिसमें हाउ टू अप्लाई फॉर ग्लोबल ग्रांट, और उसके साथ साथ एक ग्रांट जो आपने की है उसका लाइव एग्जांपल आप पावर पॉइंट पे समझा सकते हैं कि इस तरीके से ये किया, इस तरीके से ये डिटेल होनी चाहिए, ये पेपर्स होने चाहिए, इस तरीके का फंडिंग होना चाहिए वगैरह, आप ताकि एक प्रैक्टिकल समझ में आ जाए। हाँ, तो हम लोग एक सेशन, और तो मेरे ख्याल से जो अगर सबको ये लगे कि ये दोनों सेशन अच्छे हैं और आप लोगों का अगर इंटरेस्ट बना और सबको अपने को लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा है, तो अगर एक बार ये अपन कर लें कि कैसे अप्लाई किया जाता है, तो एक तो वो मिथ टूटेगी लोगों की और लोगों को मालूम पड़ेगा कि अरे यार इसमें तो जो डिटेल मांग रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, हम लोग दे सकते हैं। Yes. तो फ्रेंड, वी शैल डू दैट। करेक्ट। यस। हाँ, तो हम लोग करेंगे। Yes sir. Thank you. Oh yes, thank you sir, thank you. May I now request Lalit, thank you very much, and may I now request our past president Ghanshyam Bhai Acharya to give his concluding remarks and the thanks to Ghanshyam Bhai. You can unmute yourself. Yeah, thank you Mehul Bhai for giving me an opportunity, and Lalit, it was very nice, very simple language. No, somebody said so you clarified in a very simple language so one can easily understand it, and I think you have clarified everything, do's and don'ts for the global grant and district grant both. But so I have one request to Mehul Bhai and you both. Most of the face I see on this, no, I think most of the people are in Rotary for more than 20-25 years or so. Very few new faces or young faces are here. If you remember, Lalit, earlier in PAT and SET, in assembly also, the president and secretaries were given the books of the even TRF, global grant, or the community services and membership development, etc., etc. 4 to 5 books were given to all the president and secretary, and president work and secretarial work. I think with this technology, we are now on the online everything. But say when you read something or if you have some book in your hand, no, hard copy always make the impact. I think all this advocate also accept, and you as a chartered accountant also accept, hard copy is a must. So I think we should request all incoming district governor to at least have a few-page booklet to all presidents, so that whatever you have mentioned or what you say, that can be ready anytime. So for small or minor question, they don't need to say run after any district governor or not for the other senior person. I think that would be a very good say beginning for the new team to come. That is what I say. And Lalit, thank you very much, and Mehul Bhai, thank you very much. And I thank all the participants. Because of you, this event and this program is very successful, and we would like to continue in this way.
whatever Mehul Bhai and Lalit Bhai decide, whatever subject they decide, we all will be very eager and participating with that. With this word, I take leave and thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. So friends, we'll finalize a day and yes. One more thing, Mehul Bhai, I think it should be not more than 1 hour. 1 hour, yes. All session should not be more than 1 hour, because for everybody, I think for 40 minutes there is a some presentation is made, and for 20 minutes question answer and concluding. I think that would be appreciated by everybody. Yes. This is my suggestion. Yes, sure, we'll consider. And definitely slowly we will, by these experiences and suggestions, we will learn and we will structure this study circle very nicely. And ghana bada suggestions I have received. Even if any members has any suggestion for betterment or improvement of this study circle, please send me on my WhatsApp without any hesitation, so that we can collectively gather those suggestions and improve on this study circle. Thank you, friends. Thank you very much. Bye everybody. Bye. Thank you. Thank you, Mehul. Bye. Thank you all. Bye, Lalit. Thank you, Lalit ji. Bye. Thank you. Bye bye. Thank you, Ghanshyam bhai, for your very kind